everyone, how are you all? Welcome back to my class. Today we will start with punctuation and capital letters. We will continue the class as we were doing earlier. So, we left, we have done commas, question marks, full stops, and only I think two were left among those, the semicolon. Okay, so semicolon. Where is it used? No, semicolon, where it is used? Semicolon is used, indicates a longer pause than the commas. जब comma से ज़्यादा देर रुकते हैं ना हम, तो semicolon use होता है. It is generally followed by conjunctions like and, but or. ये किसके साथ फॉलो होते हैं? जैसे इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करते हैं and, but, or. So the semicolon is used to separate parts of a sentence which have been separated by a comma. Parts of sentence को separate करने के लिए semicolon use होता है, जो sentence शुरू में comma से separate हुआ होता है. For example, semicolon का example I'll give you. The magician's head was red. The magician head was red, stylish, and we all liked it. And we all liked it. So basically, over here we have used comma, we have used colon after using the comma. Okay. So this way we use the semicolon. See. So next is the example to separate pairs of word. When we have to separate some pairs of word. For example, the teacher said, that compliments sees arms are all homophones. Are all homophones. So over here we have seen, it is saying when we have to use two words, like to separate a pair of words, like there is a pair of words sees and sees, fine, arms and arms. So इनको separate करने के लिए भी क्या use होता है? Semicolon use होता है. Okay. So again it is used either indicates a longer pause. तो अब जब ये semicolon जो होता है ये shorter pause के लिए use होता है, ठीक है? Semicolon जो होता है, comma जो होता है वो shorter pause के लिए होता है, लेकिन जो semicolon होता है वो longer pause के लिए होता है, ठीक है? So this is clear कि जहाँ two words होते हैं उनके बाद भी ऐसे लगता है pair of words में. Now the next is the colon. अब colon कहाँ यूज होता है? It indicates a longer pause. ये भी ज़्यादा देर का pause होता है, तो उसके लिए जैसे either to introduce a quotation or a speech. कोई quotation या speech को introduce करने के लिए यूज होता है. जैसे जवाहरलाल नेहरू said, okay, नेहरू said क्या said, क्या बोला उन्होंने? ये देखो colon लग गया.
उसके बाद लिखेंगे एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, at the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ठीक है? So when the world sleeps, India will awake and life to freedom. तो कोलन कैसा लगा कि किसी की saying है या thought है, उसके बाद कोलन लगता है. ठीक है? To introduce a list, कोई list को introduce करना हो तो भी कोलन लगता है. जैसे the ingredients required for the cake are, suppose ingredients required for the cake are फिर लगा कोलन और यहाँ पर मैंने फिर क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा बटर, कॉमा शुगर, कॉमा फ्लोर, ठीक है, एंड सो ऑन. ओके, सो अगर हम लिख रहे हैं कि किसी चीज का टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, किसी चीज की लिस्ट बतानी होती है तो भी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख के आगे कोलन लगा देते हैं. ठीक है, सो ये दीज आर क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन पंक्चुएशन, दैट इज कैपिटल लेटर्स. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैपिटल लेटर्स. Now, what are capital letters? Let's study those. Capital letters are used at the beginning of a sentence. किसी सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं ना तो उसमें क्या यूज करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं. जैसे कि जस्ट अ मिनट. So capital letters are used at the beginning of a sentence. Proper nouns also begins with capital letters. So capital letters are used in the beginning of a sentence. जब भी आप कोई नया sentence लिखते हैं, हमेशा मैम क्या कहती है कि जब beginning की है तो किससे लिखना शुरू करते हैं, फर्स्ट लेटर क्या होता है हमारा, कैपिटल. कैपिटल मीन्स like capital A, capital B, capital C, isn't it? These are the capital letters. और जो हम ऐसे लिखते हैं ये क्या होते हैं, ये स्मॉल लेटर्स होते हैं, है ना. ये है क्या, ये है कैपिटल लेटर्स, ये है स्मॉल लेटर्स. ठीक है, और जब भी सेंटेंस शुरू करते हैं हम किससे शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं. टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, लाइक एग्जाम्पल, टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, ही इज गोइंग बैक, he is going back. Okay, अब सेंटेंस शुरू हुआ, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज होता है. बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में क्या यूज होता है, कैपिटल लेटर. ये देखिए एच कैपिटल है हमारा. ठीक है, देन टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विद इन्वर्टेड कॉमास. कोई डायरेक्ट स्पीच है, जैसे हम एकदम से जो डायलॉग बोलते हैं या कुछ है, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. फॉर एग्जाम्पल, he said, let her complete the work, let her complete the work. Let her complete the work. ठीक है,
सो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की बिगनिंग में भी लगता है। ठीक है। सो और कहाँ लगता है कैपिटल लेटर? द टू प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब जो आपके प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स है उसमें लगता है। प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं? जैसे कि प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि हमने कहा इंडिया, आई कैपिटल इंडिया। इसमें हम छोटा नहीं रखेंगे बिकॉज इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, तो वो हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। इंडियंस, नेपाल, नेपाल, नेपालीज। अब ये देखिए, अब हमने इनमें क्या किया है, कैपिटल है, इसमें कैपिटल लेके चलते हैं हमें। ठीक है, कैपिटल लेटर। अब आगे चलते हैं। The first letter of days of the week, months, festivals, historical events। अब इनमें से कोई भी हो, चाहे days of the week हो या months हो या कोई historical event हो या festival हो, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। जैसे suppose Monday, Monday कैपिटल लेटर हो गया। January, January, the Diwali, the Independence Day, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हमने ये सारे देखिए फर्स्ट लेटर्स, ये सब कैपिटल है इसमें। ठीक है, तो उसने क्या किया है, फर्स्ट लेटर ऑफ डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, फेस्टिवल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इज कैपिटल। To write exclamations also we use the capital letters. For example, hooray, hooray, alas, alas, bravo, oh। देखिए, जब हम ये लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले, ये देखिए ये क्या है हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जहां लगते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। अब कोई सब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस हैं तो उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। सपोज मैथमेटिक्स, English, French। ठीक है। अब इनमें क्या है, सब्जेक्ट्स हैं और लैंग्वेजेस हैं। ये भी क्या है, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होती है। नाउ नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, बेज एंड सीज। कोई भी रिवर, माउंटेन्स, किसी का भी नाम हो वो कैपिटल होता है। सपोज मैंने कहा गंगा, गंगा रिवर, इंडस रिवर, पेंगोंग लेक। सो इनका भी क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। अब किसी कॉलेज का नाम है वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी है जैसे आपके बीजेपी, कांग्रेस, आप, वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है। सपोज नेम ऑफ एरोप्लेन, ट्रेन्स, बसेस एंड शिप्स, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होती हैं। जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, एयर इंडिया, ये सब क्या होते हैं, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ बुक्स, पोम्स, एसेज एंड स्टोरीज।
जो आप बुक्स रीड करते हैं, सपोज मैंने कहा द बाइबल, द बाइबल, बाइबल, द बाइबल, द लॉइन, द लॉइन। बुक्स भी जो है वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होती है, ठीक है। नेम ऑफ माउंटेन्स, हिमालयास, ये भी कैपिटल लेटर से होगा। नेम ऑफ हिस्टोरिकल एंड फेमस बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, ये सब भी किससे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर से। ताजमहल, ठीक है। सो एक चीज हमेशा दिमाग में आप रख लो कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है सेंटेंस का, और जितने भी नेम्स हैं वो भी कैपिटल लेटर से हैं। इवन हम आपका नाम लिखते हैं या मैं अपना नाम मोनिका लिखती हूँ तो एम क्या होगा? मेरा कैपिटल होगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हम अभी भी कितने भी बड़े हो जाएं यही गलती बार बार करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। सो इसको इम्प्रूव करिए कि ऑब्वियसली जब भी सेंटेंस शुरू करें दो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, फुल स्टॉप के बाद जब सेंटेंस शुरू करते हैं दो कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जब कोई नाम लिखते हैं तो भी कैपिटल लेटर यूज होता है, ठीक है। किसी भी चीज का नाम हो तो वो कैपिटल लेटर से होता है, जैसे किसी बुक का नाम, किसी डे का, वीक का, मंथ का, ठीक है। और ये चीजें छोटी छोटी हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, जो कि हम केयरलेसली करते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम लिखने में यूज होती है। आगे आप एसेज लिखेंगे, पैराग्राफ्स लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे, और अगर वहाँ पर हम अगर ये सिली मिस्टेक्स करेंगे, छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे, तो वो जो होगा क्या होगा? वो हमें नुकसान देगा, और वो जो नुकसान है उससे क्या होगा? मार्क्स कटेंगे, ठीक है। हम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, हमें यही नहीं पता कॉमा कहाँ लगना है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है। तो इसलिए प्रैक्टिस 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 मोर। कुछ पैराग्राफ्स लिखिए, कुछ सेंटेंसेस लिखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और इनका एक टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए कि ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे हमें यूज करना चाहिए, ऐसे एक एक्सरसाइज प्रिपेयर कीजिए। Till then, take care and we'll meet in the next class. Okay, bye.